السلام علیکم۔ کئی روز سے سفر میں تھے، اس بنیاد پر ویڈیو نہیں آ پا رہی تھی۔ آج ہم آ چکے ہیں الحمدللہ، اس لیے آج ویڈیو بہت جلد آئے گی۔ آپ سبھی کا شکریہ، خصوصاً دلشاد زخمی اور قاری نثار، ان دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے بطور خاص کومنٹ کر کے معلوم کیا کہ ویڈیو نہیں آ پا رہی ہے، یعنی واٹس ایپ کے ذریعے۔ باقی سبھی کا شکریہ، لیکن ان دو کا خاص طور پر، چونکہ ان کو کتنی لگن، کتنا ان کے اندر جذبہ ہے، یہ اسی بات سے دیکھا جا سکتا ہے۔ امید تو یہ ہے کہ سب کو جذبہ ہوگا اور سب خوش فہمی میں ہوں گے، اسی لیے سبھی کا شکریہ، لیکن خاص طور پر دو حضرات کا بطور خاص شکریہ۔ جی، تو آج کا ہمارا جو بیان ہے وہ جو گزشتہ ویڈیو میں تھا، یعنی کہ 33ویں سبق میں اعراب کی تقسیم آئی تھی، اس تقسیم کی تفصیل ہوگی۔ تو ہمارا آج کا عنوان ہوگا اعراب کی تقسیم کی تفصیل۔ اعراب کی تقسیم، اعراب کی تقسیم کی تفصیل۔ اعراب کی تقسیم کی تفصیل، ٹھیک ہے، یہ ہے آج کا ہمارا عنوان۔ کیا؟ اعراب کی تقسیم کی تفصیل۔ تو سب سے پہلے ہماری قسم تھی نمبر 1، اعراب لفظی۔ اعراب لفظی، ایسا اعراب لفظی، ایسا اعراب لفظی، ایسا اعراب جس کو زبان سے، کس سے؟ جس کو زبان سے بولا جا رہا ہو، جس کو زبان سے بولا جا رہا ہو، یہ ہے ہماری اعراب لفظی کی تعریف، ٹھیک ہے۔ جیسے راشد، جیسے راشد، جیسے راشد، یہ اعراب کی تقسیم کی تفصیل ہے، یعنی جو اعراب کی 3 قسمیں آئی تھی، نمبر 1 اعراب لفظی، نمبر 2 اعراب تقدیری، اور نمبر 3 اعراب محلی۔ تو سب سے پہلے ہم نے اعراب لفظی کی تعریف کی ہے کہ اعراب لفظی ایسا اعراب جس کو زبان سے بولا جا رہا ہو۔ اب اس تعریف کو سمجھنے سے پہلے آپ 3 چیزیں سمجھیے گا۔ ہم نے پہلے آپ کو بتلا رکھا، ایک حالت رفع ہوتی ہے، ایک حالت نصب ہوتی ہے، اور ایک حالت جر ہوتی ہے۔ ہم پہلے آپ کو مثال دیں گے، پھر اس پر منطبق کرتے ہوئے چلے جائیں گے اور سمجھاتے چلے جائیں گے، کیونکہ سیدھی سی تعریف ہے۔ اعراب تو ہم پہلے گزشتہ جو اسباق ہو گئے اس میں سمجھا چکے ہیں کہ اعراب کس کو کہتے ہیں۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب وہ لفظ یا حرکت جو معرب کے آخر میں آئے، یعنی کسی بھی کلمے کے آخر میں جو زبر زیر پیش آتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو جیسے راشدن ہے، کیا ہے؟ راشدن ہے، تو راشدن پر جو 2 پیش آ رہے ہیں، راشدن پر جو 2 پیش آ رہے ہیں، یہ 2 پیش ہی اعراب کہلائیں گے، رائٹ؟ تو یہاں پر جو 2 پیش ہیں یہ اعراب ہے۔ تو کسی بھی لفظ کے آخر میں جو حرکت ہوگی یا حرف ہوگا، اسی کو کیا بولیں گے؟ اعراب بولیں گے۔ تو یہاں تو چونکہ حرکت ہے، یعنی 2 پیش، اس لیے اس کو اعراب بولیں گے۔ یا کہیں حرکت نہیں ہوگی بلکہ لفظ ہی اعراب کہلائے گا، وہ آئندہ بھی اسی کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، وہاں ہم بالتفصیل سمجھائیں گے۔ تو آپ سمجھیے گا کہ اعراب جو ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں ہوتا ہے۔ تو اگر یہ لفظوں میں ہے جیسے یہاں پر ہے، اگر یہ لفظوں میں ہے جیسے یہاں پر راشدن،
तो ये समझो एराब लफ्जी है। तो आपको मैं बता रहा था कि 3 कंडीशन होती हैं, 3 हालतें होती हैं। नंबर 1 हालत रफा, नंबर 2 हालत नसब, नंबर 3 हालत जर। जैसे हम यहाँ राशिदुन लेकर आए तो इसको राशिदुन भी पढ़ सकते हैं, राशिदन भी पढ़ सकते हैं और राशिदिन भी पढ़ सकते हैं। अब हम इसको तीनों को एग्जाम्पल के तौर पर पेश करेंगे। नंबर 1 हालत रफा, जैसे आप कहें, आप कह सकते हैं हादा राशिदुन, हादा राशिदुन। तो हादा तो मुब्तदा हो जाएगा और राशिदुन ये खबर हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि मुब्तदा में तो आपने बताया था मरफू होता है, हादा पे तो कोई रफा नहीं है। हाँ, इसी का तो बयान चल रहा है, इसी को तो समझना है कि इस पर रफा क्यों नहीं है। ठीक है, लफ्जों में रफा क्यों नहीं है अभी हम समझाएंगे इंशाअल्लाह इसी सबक में। तो हादा मुब्तदा, राशिदुन खबर, और खबर चूंकि मरफू होती है तो यहाँ पर दो पेश आ गई। ये हालत रफा में था क्योंकि खबर बन रहा है, और खबर आपको मालूम है खबर क्या होती है, मरफू होती है, तो इस बुनियाद पर इस पर पेश आ गया। तो देखिए हालत रफा में पेश आ गया। ठीक, आगे चलिए, हम कहें राइतु राशिदन, राइतु राशिदन। तो देखिए राशिदन जो अब से पहले दुन था वो दन हो गया। क्यों? इसलिए कि मैंने राइतु फैल फाइल इस्तेमाल किया। यह इल्म सर्फ की बात है, इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू किया जा रहा है। तो हमें देखना यह है कि जो राशिदन है यहाँ मफऊल बन रहा है। क्या बन रहा है? मफऊल बन रहा है। मैंने राशिद को देखा, तो ये हालत रफा की जगह हालत नसब में आ गया, इसलिए अब इस पर राशिदन पर दो जबर आ गए। मैंने राशिद को देखा। देखो कोई भी आप काम करेंगे 3 चीज होगी, एक तो काम करने वाला जैसे मैं, एक कोई काम जैसे क्या, देखा, और इसको बोलेंगे फ़ैल, और तीसरा होता है मफऊल यानी जिस पर वो फ़ैल वाक़ हुआ हो। तो मैंने राशिद को देखा, तो राइतु राशिदन, ये राशिदन मफऊल बनेगा और इस पर दो जबर आएंगे, तो अब ये हो जाएगा राशिदन। तीसरी चीज आप समझिए, तीसरी चीज है हालत जर। आप कहें नजर तु इला राशिदिन, नजर तु इला राशिदिन, तो अब राशिदिन के नीचे दो जेर आ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि इससे पहले हरफे जर आ रहा है इला, और हमने कई मरतबा बतला दिया कि हरफे जर दाखिल होने की वजह से उसके बाद वाला जिस्म होता है वो मजरूर होता है। तो क्या हो गया? नजर तु इला राशिदिन, मैंने राशिद को देखा। तो हमने 3 मिसाल दी, आप कापी पर इसको नोट कर सकते हैं। तीनों मिसालों में एक जगह राशिदुन था चूंकि मुब्तदा खबर बना हालत रफा, एक जगह राशिदन था चूंकि मफूल बना हालत नसब, एक जगह राशिदिन था चूंकि मजरूर बना हालत जर। तो ये है इसका मतलब एराब लफ्जी, ऐसा एराब जिसको जबान से बोला जा रहा हो। देखिए तीनों हालतों में जबान से बोला जा रहा है। आगे चलिए, नंबर 2, नंबर 2 एराब तकदीरी। नंबर 2 एराब, नंबर 2 एराब तकदीरी। नंबर 2 एराब तकदीरी। ऐसा एराब, एराब तकदीरी, ऐसा एराब, ऐसा एराब जिसको, ऐसा एराब जिसको जबान, जिसको जबान से तो, एराब तकदीरी ऐसा एराब जिसको जबान से तो नहीं, जबान से तो नहीं बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है, बल्कि नहीं बोला जा रहा हो, नहीं बोला जा रहा हो। अलबत्ता, जिसको जबान से तो बोला नहीं जा रहा हो, अलबत्ता, अलबत्ता छिप कर आ रहा हो, अलबत्ता छुप कर आ रहा हो। अब आप इसको समझिएगा, एराब तकदीरी
ऐसा एराब जिसको जबान से तो नहीं बोला जा रहा हो, अलबत्ता छुप कर आ रहा हो, छुप कर आ रहा हो। जैसे क्या, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अल काजी, जैसे अल काजी। देखिए आप, तो एराब तकदीरी ऐसा एराब जिसको जबान से तो नहीं बोला जा रहा हो, यानी इस कंडीशन में तो ना हो, इस तरह का तो ना हो, फिर कैसा हो, उसमें छुप कर आ रहा हो। अब भाई हम कैसे पहचानेंगे छुप कर आ रहा है, कैसे निकालेंगे इसको छुपे हुए को, इसको हम समझते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए, क्या, हादा राशिदुन, इसी तरह हम यहाँ पर कहेंगे हादा अल काजी। क्या तर्जुमा, ये काजी है, क्या है ये काजी है। तो जिस तरह वहां पर खबर होने की वजह से दो पेश आ रहे थे, यहां पर खबर होने की वजह से दो पेश क्या, एक पेश भी नहीं आ पा रहा है। जैसा पहले थे जनाब ऐसा ही आज भी है। तो ये तो हवा हो जिधर की चलो तुम उधर को, इनके साथ तो ये हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि हवा हो जिधर की हम उधर को नहीं चलेंगे, हम तो एक जगह पहाड़ की तरह जमे रहेंगे। ठीक है, ये भाई साहब जमे हैं। तो इनका हालत यहाँ पर इनकी क्या है, खबर की है, हादा अल काजी, ये काजी है। जिस तरह हमने ऊपर कहा था हादा राशिदुन, ये राशिद है। ठीक है, ये नहीं बदल रहे हैं, इन पर पेश नहीं आ रहा है, तो इसी को कहा। अब इस पर क्या कहेंगे कि इस पर भाई छुप कर आ रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि छुप कर आ रहा है, यही तो मालूम हो रहा है। खबर क्या होती है, मरफू होती है, यानी उस पर पेश होना चाहिए, ये खबर बन रहा है, उसके बावजूद भी जनाब अलकाजी ही कहला रहे हैं। तो मालूम हो गया कि एराब छुप कर आ रहा है, एराब छुप कर आ रहा है, तो हादा अलकाजी कहलाएगा। राइट, अब चले हम हालत नसब की तरफ। मैं कहूं रअयतु अलकाजिया, अब इस या पर जबर आ जाएगा, रअयतु अल काजिया, मैंने काजी को देखा, मैंने काजी को देखा। तो देखिए यहां पर मफऊल बन रहा है, क्या बन रहा है, मफऊल बन रहा है। मफऊल बनने की वजह से इस पर क्या आ गया, जबर आ गया। अब आप ये कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि छुप कर आ रहा हो, और अभी यहां आपने जबर लगा दिया। जी बिल्कुल जबर लगा दिया। हालत नसब में इसका एराब जबर ही होता है, क्यों, इसलिए कि हम इसमें और जो अगली तारीफ है उसमें डिफरेंस करने जा रहे हैं, फर्क करने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं। इसीलिए हम जानबूझकर इस मिसाल को लेकर आए ताकि आप आइंदा कभी भी कंफ्यूज ना हो, और इस मिसाल से आप अगली मिसाल भी समझ जाएंगे, और अगली जो डेफिनेशन आ रही है नंबर 3 की वो भी आप समझ जाएंगे। आप याद रखिएगा, अगली जो हम तारीफ लिखेंगे ना तो उसी के तहत हम समझाएंगे, देखिए इस पर जबर क्यों आया। बहरहाल मफऊल होने की वजह से इस पर क्या आ गया, जबर आ गया, अल काजिया। राइट, तीसरी हालत है नजरतु इलल काजी, इला कह दें या इलल मिलाकर पढ़ दें, अलहिदा पढ़ दें, नजरतु इला अल काजी, मैंने काजी को देखा। देखिए यहां पर काजी काजी ही रहा, पहली मिसाल यानी हालत रफा की तरह। तो देखिए तीसरी मिसाल जो हमने बनाई नजरतु इलल काजी, इसमें भी काजी काजी है, हालांकि इस पर हरफ जर दाखिल हो रहा है, यानी ये महल्ले जर में है, इस पर जर होना चाहिए, जेर होना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं अराब तकदीरी, ऐसा अराब जिसको जबान से तो नहीं बोला जा रहा हो, अलबत्ता छुप कर आ रहा हो। तो यहाँ पर छुप कर आ रहे हैं जनाब। ठीक है, 3 मिसालें हैं, तीनों हमने आपके सामने दे दी। पहली मिसाल हादा अल काजी, खबर होने की वजह से इस पर पेश माना जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे, अलकाजी पर रफा तकदीरी, खबर होने की वजह से, अलकाजी पर रफा तकदीरी है, खबर होने की वजह से। जी, फिर हम कहेंगे रायतु अल काजिया, अल काजिया पर जबर आया मफऊल भी होने की वजह से। और तीसरी मिसाल है नजरतु इलल काजी, काजी पर जर तकदीरी, काजी पर जर तकदीरी इला मजरूर होने की वजह से। तो तीनों हालतों में हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 एराब महल्ली, नंबर 3 एराब, नंबर 3 एराब महल्ली, एराब महल्ली।
ایسا اعراب، اعراب محلی، ایسا اعراب اعراب محلی، اعراب محلی یہ اس میں، یہ اس میں مبنی، یہ اس میں مبنی پر آتا ہے، یہ اس میں مبنی پر آتا ہے، اس میں مبنی، اس میں مبنی ایسے محل میں ہے، اس میں مبنی ایسے محل، اس میں مبنی ایسے محل میں ہے کہ اگر، اس میں مبنی ایسے محل میں ہے کہ اگر اس کے بجائے، کہ اگر اس کے بجائے کوئی، کہ اگر اس کے بجائے کوئی اس میں، کوئی اس میں معرب، کوئی اس میں معرب ہوتا، کوئی اس میں معرب ہوتا تو اس پر، تو اس پر لفظاً، تو اس پر لفظاً یا تقدیراً، تو اس پر لفظاً یا تقدیراً، لفظاً یا تقدیراً اعراب آ جاتا، اعراب لفظاً یا تقدیراً اعراب آ جاتا، رائٹ، جیسے، جیسے ہؤلائی، بلکہ ہم چھوٹی سی مثال لکھ دیں وہی جو شروع میں دے رہے ہیں، ہذا، جیسے، جیسے ہذا، حالانکہ ہؤلائی بن جائے گا، لیکن چونکہ یہ مثال شروع سے چلی آ رہی تو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو اعراب محلی یہ اس میں مبنی پر آتا ہے، اس میں مبنی ایسے محل میں ہے کہ اگر اس کے بجائے کوئی اس میں معرب ہوتا تو اس پر لفظاً یا تقدیراً اعراب آ جاتا۔ دیکھیے یہی بات ہمیں سمجھنی ہے، خاص طور پر ہم یہاں پر یہ مثال کیوں لے کر آئے تھے، اسی چیز کو سمجھانے کے لیے یہاں پر القاضی ہی مثال کیوں لے کر آئے، حالانکہ بہت ساری مثالیں بن جاتی، آئندہ بنیں گی بھی، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ دراصل یہ جو دوسری قسم کا اعراب ہے اور تیسری قسم کا اعراب ہے، ان میں آپ تھوڑا سا ڈفرینس سمجھیے ورنہ آپ بہت کنفیوز ہوں گے۔ آپ اس بات کو ذہن نشی کر لیجئے گا، اس سبق میں ان دو باتوں کو خاص طور پر سمجھنا ہے، ورنہ اتنے کنفیوز ہوں گے، اور شاید جو ہمارے پڑھے ہوئے ساتھی ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، یہ جو پڑھ چکے ہیں، وہ اس میں اتنے کنفیوز ہوتے ہیں، اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس سے نکلا کیسے جائے گا۔ اسی لیے ہم خاص طور پر اس مثال کو لے کر آئے۔ اب آپ سمجھیے، دراصل ایک اسم تو ہوتا ہے اس میں معرب، ایک اسم ہوتا ہے اس میں مبنی، یہ ہم آپ کو 31ویں شاید یا 31ویں سبق میں غالباً یا 32ویں سبق میں پڑھا چکے ہیں، معرب اور مبنی۔ تو یہ جو معرب ہے، معرب وہ کلمہ جس کا آخر حالات کے بدلنے سے بدلتا رہے، مبنی وہ کلمہ جس کا آخر حالات کے بدلنے سے نہ بدلے، بالکل یکساں رہے، برابر رہے۔ تو اب آپ دیکھیے القاضی آپ نے دیکھا، ہم نے 3 مثالیں دی، جو ہم نے بیچ کی مثال دی مفعول کی، اس پر قاضی آ گیا، کیا آ گیا، قاضیہ آ گیا۔ تو بھائی صاحب اعراب اس پر تقدیری ہے، دراصل اس پر بھی ایک طرح کا تقدیری اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو محلی بولتے ہیں، لیکن دیکھنے میں وہ تقدیری ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے دیکھا 3 مثالوں میں ایک مثال ایسی تھی کہ جس پر زبر آ رہا تھا، کیا، رأیت القاضیہ، زبر آ گیا، کیا آ گیا، زبر آ گیا۔ تو بھائی صاحب جب اس پر چھپ کر اعراب آتا ہے تو زبر کیوں آ گیا، اسی کو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم آگے چل کے سمجھانے جا رہے ہیں۔
तो जबर इसलिए आ गया चूंकि ये जनाब मबनी है ही नहीं, ये तो मोरब है। क्या है? मोरब है। इसलिए मोरब की शनाख्त और पहचान के लिए और बताने के लिए कि ये एराब मोरब पर ही आता है, इस पर जबर आया है। क्या? अल काजिया, मफऊल की हालत में। जब ये हालत नसब में होगा, हालत नसब में होगा तो इस पर जबर ही आएगा, अल काजिया। और हालत रफा और हालत जर, ये दो हालत ऐसी है कि इसमें अलकाजी ही रहेगा। तो अलकाजिया क्यों है? चूंकि भाई साहब ये दरअसल मोरब है, मबनी है ही नहीं। अगर मबनी होते तो जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत का मामला इनके साथ पेश आता, और हवा हो जिधर की चलो तुम उधर को ये मामला छोड़ देते, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। तो बहरहाल मालूम हुआ कि अगर हालात के बदलने से आखिर बदलता रहे तो उसको बोलते हैं मुअरब, और जो तमाम हालत में अक्सर है इसको कहते हैं मबनी। अब इन जनाब को देखो, हादा, अब इन जनाब को कहीं भी लिया हो, ये हादा का हादा ही रहेंगे, बिल्कुल नहीं बदलने। जैसा आप कहें, आप हमने पहली मिसाल दी थी हादा राशिदुन, यहाँ मुब्तदा बना हादा राशिदुन, क्या तर्जुमा? ये राशिद है। इसका उल्टा कर दो, राशिदुन हादा, राशिद ये है। यहाँ भी जनाब हादा, वहां भी जनाब हादा, इस पर कुछ नहीं आया, हालांकि दोनों हालतों में रफा था, पेश होना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, एक ही हालत। आगे चलो, राइतु हादा, मैंने इसको देखा, यानी शख्स को देखा। यहाँ मफूल बन रहा है, जब भी हादा ही आ रहा है। अब तीसरी मिसाल लें, तीसरी मिसाल नजरतु इला हादा। तो देखिए यहाँ पर जर होना चाहिए, चूंकि इला पे जर दाखिल हो गया, तब भी हादा है। तीनों हालतों में एक ही कंडीशन रही है जनाब की। क्यों? इसलिए कि इस पर एराब एराब महल्ली आता है, और ये इसमें मबनी पर होता है, इसलिए कहा गया एराब महल्ली इसमें मबनी पर आता है। किस पर आता है? तो इन दोनों में डिफरेंस, चूंकि इसमें भी लफ्जों में नहीं आ रहा है एराब, इसमें भी लफ्जों में नहीं आता है एराब, छुपा हुआ होता है तकरीबन दोनों के अंदर। लेकिन अब इन दोनों में हम डिफरेंस कैसे करेंगे? तकदीरी में और महल्ली में डिफरेंस यही है कि भाई साहब याद रखिएगा कि एराब तकदीरी तो इसमें मोरब पर आता है, और एराब महल्ली इसमें मबनी पर आता है। लिहाजा मालूम हुआ कि हादा क्या है? मबनी है, और अलकाजी क्या है? मुअरब है। इसी वजह से इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ कि इसकी तो तीनों की तीनों हालत तो एक एक ही रही, हादा हादा हादा, और ये दो हालतों में अलकाजी रहा, लेकिन तीसरी जो हालत यानी बीच वाली हालत नसब वाली, वो बनी अलकाजिया। क्यों? इसलिए कि ये मुअरब भी है साथ साथ में। ठीक है, तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि सबक सारा समझ में आ गया होगा, और इसको समझना जरूरी है, चूंकि कुरान और हदीस का कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो इन तीनों में से खाली हो। कोई ना कोई एक लफ्ज जरूर होगा, या तो उस पर एराब लफ्जी होगा, या तकदीरी होगा, या एराब महल्ली होगा। इसलिए इतना कीमती और इतना सुनहरी बयान है कि इसको बिल्कुल ना छोड़िएगा, इग्नोर ना कीजिएगा। समझ में ना आए तो बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि आप जो है खैरियत से हैं, और आप क्यों नहीं आपने कमेंट किया, जैसे दिलशाद जख्मी साहब ने और कारी निसार साहब ने कमेंट किया कि वीडियो नहीं आ पा रही है, खैरियत तो है। उन्होंने अपने हिसाब से बहरहाल मालूम किया, आपको भी मालूम करना चाहिए था। हो सकता है हम बीमार हो, तो आपको हमारा ख्याल रखना चाहिए ना, जैसे हम आपका ख्याल रखते हैं। इंशाल्लाह आज लाइव भी आएंगे, आज 8:40 पर, और आप लोगों से 10-20 मिनट के लिए मुखातब होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।